Welcome my viewers once again. In today's video, I am going to analyze the question paper which was conducted by Punjab Subordinate Service Commission Board on 3rd of October 2021 in different centers in the state of Punjab. I have D code of this paper. This paper was for Excise and Taxation Inspector. Okay, full name is Block Level Extension Officer or Senior Industrial Promotion Board Excise and Taxation Inspector. I have D series in my hand and I will solve its English part. Okay, in the video I will give you some hints and some tips for coming exams which are likely to be conducted by this board in the coming days. Okay, I will also talk about some corrections, some errors in the answer key which is released by this subordinate board. So before I start my video, I want to tell you I am Chandrapal from Government Girls Senior Secondary School, Nathasari Kala, net qualified in English subject, having teaching experience of about 20 years in different government schools in the state of Haryana. Okay, now coming on question number 71. Okay, 71 question is based on pronouns. Topic of pronoun is very important. Okay, previously I had explained paper of Punjab Patwari. In that paper also there was a question on pronoun. So pronoun topic is very important, and examiner is always giving one question from pronoun, one question from preposition, one idiom is there. So student, you have to master these topics for coming exam. That type of hints I want to give you. Question is, find out which part of a sentence has an error or mark that part as an answer. Okay, one should take advantage of opportunity to talk with native speakers if one wants to improve your English. So okay, here D answer is correct answer, and in answer key also D is the given right answer. तो यहाँ पर हमारा डी पार्ट है वो वहाँ मिस्टेक है, क्योंकि जो प्रोनाउंस होते हैं वो प्रोनाउंस जो होते हैं वन के साथ है वो वंस होना चाहिए, वंस इंग्लिश. ओके, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद नेटिव स्पीकर इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश. ओके, वंस इंग्लिश. इसी सेंटेंस को मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा. अगर हम वन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, इसको यू के अकॉर्डिंग ऐसे बोलेंगे, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर इफ यू वांट टू इम्प्रूव यूर इंग्लिश. तो यहाँ पर बी है वो आंसर होगा, यहाँ पर डी है वो हमारा आंसर है, और ये बिल्कुल आंसर की में सही बोला गया है. क्वेश्चन नंबर 72. फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रेपोजिशन गिवन बिलो. तो प्रेपोजिशन जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. प्रेपोजिशन के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं. जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, ओके, दोज हु डोंट नो अबाउट माई चैनल इज Easy English NCERT e-learning with Chandrapal. Okay, it is available on YouTube channel. I have made many videos on basic English grammar. Okay, for my students, you can subscribe my channel. Now, anyone who comes in contact with is emulated his charismatic personality. तो यहाँ पर जो हमें benefit of doubt है वो आंसर की के अंदर इसका आंसर है वो दिया है, वो बी दिया गया है. ए ऑप्शन इज विथ, बी ऑप्शन इज ऑफ, सी ऑप्शन इज बाय एंड डी ऑप्शन इज टू. तो हेयर आंसर की के अंदर जो हमारा आंसर दिया गया है वो बी दिया गया है, और जो कि मेरे अकॉर्डिंग है वो रॉन्ग है. यहाँ पर विद है वो राइट आंसर होना चाहिए. तो इसके लिए आप अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल ज़रूर करिए. ठीक है, वैसे अगर डाउट आएगा तो दोनों को ही मार्क्स मिलेंगे, ए और बी को. अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग है वो पर्सन्स के लिए विद है वो आंसर है वो ज़्यादा सही होगा. ओके, हम ये कहेंगे शी वॉज एम्यूरेटेड विद द बॉय नेक्स्ट डोर. ओके, एम्यूरेटेड का जो मीनिंग होता है वो फॉन्ड ऑफ होता है.
ठीक है, कि उसको बड़ा ही पसंद था कोई चीज़, ठीक है, इस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। तो 72 के अंदर आपको बेनिफिट डाउट मिलना चाहिए, आंसर की में ए आंसर होना चाहिए, जबकि आंसर की में बी जो आंसर है वो दिया गया है। तो आप अपनी ऑब्जेक्शंस हैं वो फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम गिवन अंडरलाइन इन द सेंटेंस। आपको ईडियम बताना है, मुहावरा है ये। ही इज ए स्ट्रेंज फेलो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद हिम, इट मीन्स दैट ही हैज़ ए बी इन हिज बोनेट। ओके, अब देखो बी इन हिज बोनेट जो होता है, इसका जो मीनिंग है वो चार ऑप्शंस हैं। ए एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, बी इज टू फेस प्रॉब्लम्स एज ए रिजल्ट ऑफ हिज सेंसलेस एक्शन, देन बी इज an obsession about something, and D is a peculiar habit of confusing others। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होता हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के का पागलपन हो जाना, किसी चीज़ का भूत सवार हो जाना, तो बी इन हिज बोनेट होता है। यहाँ पर हमारा जो आंसर की में आंसर है वो भी बी है, और यही हमारा राइट आंसर है वो बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 74 है, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। ओके, ऑप्शन ए इज, अब रिनाउंस का मीनिंग होता है मुक्ति पा लेना किसी चीज से। ए इज अबडक्ट, बी इज अबंडन, सी इज अबॉट, एंड डी इज एब्रिकेट। ओके, तो मैं आपको सभी के मीनिंग्स हैं वो बताना चाहूँगा। अबडक्ट का मतलब होता है टू टेक समथिंग इलीगली, किसी चीज़ को हथिया लेना, कब्जा कर लेना, अबडक्ट होता है। अबंडन किसी चीज़ को छोड़ देना होता है, जैसे टू स्टॉप डूइंग और बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग और नॉट फॉलोइंग एनी एक्सेप्टेड रूल, अबंडन होता है। अबोर्ट का मतलब अबॉर्शन से बना हुआ वर्ड है ये, ठीक है, टू एंड समथिंग बिफोर इट इज टू बी कंप्लीटेड। एंड डी जो है वो एब्डिकेट है, और एब्डिकेट का मीनिंग होता है टू रिजाइन फ्रॉम बीइंग ए किंग और टू डिसाइड नॉट टू डू ए ड्यूटी। तो यहाँ पर जो मुक्ति पा लेना है उसका जो आंसर है वो डी आएगा, और डी ही आंसर है वो आंसर की में दिया गया है, ये भी बिल्कुल राइट है आपका। अब है 75 के ऊपर आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स। First, the manager asked him how he would avail this opportunity. B is, the manager asked him how he would avail of this opportunity. The manager asked him how he would avail himself of this opportunity. And D is, the manager asked him how he would avail himself this opportunity. तो यहाँ पर C आंसर है वो करेक्ट है। ओके, सी है वो आंसर की में भी करेक्ट है, और यही करेक्ट आंसर होगा इसका। अब 76 पर आते हैं, चूज द एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव विच इज एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, ए मेजॉरिटी ऑफ द पैसेंजर कुड हैव बीन सेव्ड इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम। ओके, अब आपको बताना है कुड हैव सेव्ड। ओके, कुड हैव सेव्ड की इम्प्रूवमेंट है वो क्या हो सकती है। ए ऑप्शन इज हैड बीन सेव्ड, बी ऑप्शन इज मे हैव बीन सेव्ड, सी ऑप्शन इज कुड हैव सेव्ड, एंड डी इज नो इम्प्रूवमेंट। तो हेयर क्योंकि हमारा आपको टिप्स देना चाह रहा हूँ कि हैड अप्लाइड दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। ओके, तो पास्ट परफेक्ट के साथ हम पास्ट ही पैसिवाइज के अंदर है वो लेंगे, तो यहाँ पर जो पास्ट ही लगाया हुआ है। अब देखो बी ऑप्शन के अंदर है वो मे लगाया हुआ है, मे है वो प्रेजेंट को शो करता है, इसलिए रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है कुड हैव बीन सेव्ड, क्योंकि पैसिवाइज है ये, तो हैव बीन सेव्ड ही होगा यहाँ पर, इसलिए डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, और यही आंसर की में दिया गया है, डी इज द राइट आंसर। नाउ 77 पर आते हैं, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, और जो हमारा मीनिंग है वो है कमिसरेशन। ओके, कमिसरेशन जो वर्ड है, ओके, इसका जो मीनिंग्स दिए गए हैं, फर्स्ट इज कमीशन, सेकंड इज वास्टनेस, सी इज सिंपैथी, एंड डी इज कमेंडेशन। ओके, कमेंडेशन अब कमेंट से बना है,
ओके, कमेंट करना टू होता है टू प्रेज समथिंग, और इसका जो राइट आंसर है कॉमिशरेशन। ओके, कॉमिशरेशन का मीनिंग होता है टू शो सिंपैथी फॉर समथिंग, तो सी इज द राइट आंसर। और जो कमेंडेशन होता है, कमेंडेशन होता है टू प्रेज समथिंग होता है। दोनों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और कमीशन है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। जब नाउन होगा तो इसका मतलब आयोग होगा, और जब इसका कमीशन होगा तो वर्ब भी होगा। ये वर्ब के अंदर हम कोई चीज़ देते हैं, ठीक है, एक्शन को भी शो करता है। वास्टनेस विस्तृत होता है, ठीक है, वास्टनेस है वो विस्तृत होता है, ये नाउन है। अब 78 पर आते हैं। Select the word which is closest to the opposite in meaning of the underlined word given in the following sentence. He is showing sign of sterility. Okay, sterility एक disease होती है, ओके, और इसका आपको अपोजिट बताना है। ओके, अब आंसर की है, यहाँ पर आपको अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करनी चाहिए। इसका जो आंसर है वो ए पार्ट में वेरिलिटी बोला हुआ है, बी में लेजीनेस आलस, सी में मैच्योरिटी, एंड डी के अंदर है वो एजिंग दिया गया है। एजिंग का मतलब आयु बढ़ना होता है। अब जो सेरिलिटी है वो एक डिजीज है। ओके, ये वर्ड है वो आया है सेनाइल डिमेंटा। ओके, सेनाइल डिमेंस। ओके, ये एक डिजीज होती है। इसका मतलब होता है कि वीकनेस शो करना, ओके, वीकनेस आना। अब इसका जो अपोजिट है वो वेरिलिटी होगा, और वेरिलिटी मीन्स टू शो पावर और स्ट्रेंथ। ओके, ये बनता है ए है वो राइट आंसर हमारा आ रहा है। जबकि जो हमारा आंसर है, आंसर की के अंदर 78 के अंदर है, जो आंसर की में दिया है उसने, ओके, वो डी दिया हुआ है, वो उसने सिमिलर मीनिंग है वो ले लिया है। ये एक क्लरिकल मिस्टेक है, इसलिए आप अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करिए। एजिंग इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका मीनिंग वेरिलिटी होगा। तो ए है वो यहाँ पर राइट आंसर है वो बन रहा है। ओके, ए पर आप राइट करिए और बी पर है वो रॉन्ग आएगा। यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्शन है वो फाइल करनी चाहिए। 79 पर आते हैं। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेलिंग्स के ऊपर भी मैंने 120 स्पेलिंग्स के ऊपर जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं उन पर वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको देख सकते हैं। इजी इंग्लिश NCERT ई लर्निंग विद चंद्रपाल, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोज़ के लिए भी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के जो भी पेपर्स मेरे पास पहुंचेंगे उनके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। इंग्लिश पार्ट के ऊपर ही बनाऊंगा, दूसरे पार्ट्स पर मैं नहीं बनाऊंगा, बिकॉज आई एम एन इंग्लिश टीचर। ओके, एंड आई वांट दैट माय स्टूडेंट and my viewers should do well in English. Okay, I have made about 600 videos. Okay, now spellings are intrude, mockery, moderator and phenomena. Okay, phenomenon. Okay, phenomenon is there. Phenomenon is singular and phenomena is plural. It can be asked in any exam. Okay, particularly in English subject, English teacher. ओके, इंग्लिश टीचर एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड। नाउ इंट्रूड मीन्स घुसपैठ करना होता है। मोकरी है वो किसी का एक प्रकार से मजाक उड़ाना होता है। मॉडरेटर जो होता है वो बिचौलिए को बोल देते हैं। मॉडरेटर, ऑपरेटर, डोमिनेटर, ओके, ये वर्ड हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। और फिनोमिनन, ओके, फिनोमिनन दिया हुआ है, ये सिंगुलर होता है। अब यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। मॉडरेटर करेक्ट स्पेलिंग है वो मॉडरेटर में नहीं दी गई, MODERATOR होना चाहिए, और यही आंसर की में भी दिया गया है। सी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, रीअरेंज द पार्ट PQRS टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब ये लिटल से शुरू किया गया है। क्या है? लिटल दैट ही हैड बीन लेट डाउन स्टूड बाय ऑल दीज years, did he realize by a colleague whom he had। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C एंड D। तो ये जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से बनेगा, लिटल डिड ही रियलाइज दैट ही हैड बीन लेट डाउन बाय ए कोलीग whom he had stood by all these years। तो यहाँ पर ए आंसर है वो आंसर की में दिया गया है, और ए ही यहाँ पर राइट आंसर है वो बन रहा है। तो स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, दिस इज
English part of this paper, I have solved D set. Okay, D set for all of you. In nutshell, I will say that there are problems in two questions. Okay, question number 72 and 78. In question number 72, A is the right answer, and in 72 also A is the right answer, but in answer key, which is released by the subordinate commission, they have given the wrong answer. You can file your objections. Okay, you can file your objections. Still you have time to file your objections. And one more tips or hint I would like to give you, that most of the questions which are asked, they are from अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेटिकली जब हम देखते हैं तो ये क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो जो वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे बी इन हिज बोनेट. ओके, अब ये बी से शुरू हो रहा है. ऐसे ही जो वर्ड आपके आया हुआ है एन्यूरेटेड, ये ई से आया हुआ है. और ऐसे ही जो आपके 74 के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी ए से दिए गए हैं. ओके, और इस प्रकार से जो आपका 77 के अंदर है कॉम्यूनरेशन आया हुआ है, ये भी सी से आया हुआ है. तो बहुत सारे जो आपकी वर्ड्स आए हुए हैं वो शुरू के अल्फ़ाबेट से ही आए हुए हैं. यानी कि जब एग्जामिनर आपका पेपर बना रहा है तो वो हर चीज़ को शुरू के पेजेस से ही दे रहा है. तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करिए. ओके, यही मैं आपको टिप्स देना चाहता था आज के लिए. आपको ये वीडियो कैसी लगी? Share with your nears and dears who are preparing for these competitive exams. Okay, all the best for your competitive exams. Okay, thank you so much. This is all for today, and have a nice day.